going to practice the past board question papers with you. Children, they always ask me, ma'am, is it important that we solve the past question papers? And my answer is an absolute yes. And why? As I always repeat, one, it gives you an idea about the trend as to which questions are important and which questions are not important. Second, as I share the CBSE marking scheme with you, you come to know exactly how to write those answers so that you can get that perfect 100. Third, it helps you determine your speed. Practicing those papers, you come to know whether you're writing with the same speed or not, good speed or not, so that you can complete your question paper on time on the D-Day, that is on the day of your exam. And last but most important, some of the questions they get repeated, so you never know, you're a lucky man this time that many of the questions they may get repeated, that may make your question, answering, solving your papers very easy, right? So with those words, here I go. Today we are going to discuss past 10 question papers of board question papers जो CBSE बोर्ड में जो हर साल क्वेश्चन आते हैं along with the original marking scheme. Original marking scheme मतलब CBSE हर साल खुद से आंसर्स पब्लिश करती है जो वो अपने टीचर्स को देती है कि इस आंसर्स को दिमाग में रखते हुए, इन गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए आपको करेक्शंस करना है. सो पास्ट 10 इयर्स के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के न केवल हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बल्कि CBSE द्वारा दिए गए द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस वी आर आल्सो going to see that, right? So without wasting much time, here we are into chapter 3, human reproduction. Now before we proceed, we are going to do it from 2010 to 2020. आपको पता है कि इस साल भी आपका बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और उसकी करेक्शंस भी हो चुके हैं, चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसे हम डिस्कस करेंगे. और इससे पहले हम आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम यूनिट 6 रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसका बोर्ड में ओवरऑल 14 मार्क्स वेटेज है. इस यूनिट के तहत 4 चैप्टर्स हैं. इंडिविजुअल चैप्टर्स की वेटेज CBSE ने पब्लिश नहीं की है, बट ओवरऑल द 4 चैप्टर्स दे हैव अ मार्क्स वेटेज ऑफ 14 मार्क्स. The question paper, the board question paper has changed from this time. I just want you to have a quick look at it. From this year onward, we have 5 MCQ questions, 7, 2-mark question, 9 3-mark questions, and 3 3-mark question, which will be a little bit reasoning based, and 3 a long 5-mark question. There is some internal choice in 2-mark, 3-mark and 5-mark questions as well. What are these detailed? ये detailed question paper कैसा है? What are the general instructions? मैंने इसको आपको यहाँ पर डाल दिया है और इसमें आपके कितने choices हैं, क्या है, everything is given over here. I just want you to read 1 to 5 जो question है 1 mark का है, then B section 2 mark का है, फिर C 3 mark का, D 3 mark का, and E जो है वो आपकी 5 mark का question है. Internal choice 2 1 मार्क के क्वेश्चन में, 1 2 मार्क के क्वेश्चन में, 2 3 मार्क के क्वेश्चन में, एंड ऑल द 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क के क्वेश्चन में आपका होता है. Right? Now that you know that, without wasting much time, we will start from 2011 question paper, right? So here we go. 2011 में इस chapter human reproduction से overall, if you see, 4 mark के question आए थे, 1 mark का question and 1 3 mark का question. Now let us look into those questions, right? 1 mark के क्वेश्चन में आया था, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल ऑफ द ह्यूमन फीमेल. यूट्रस में इम्प्लांटेशन जिस फॉर्म का होता है, ये अगर हम यूट्रस मानकर चले, ये इम्प्लांटेशन, राइट, तो उसका नाम बताएं. Let me draw the female reproductive system, a rough one, right? हम जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. Yes, you guessed it right. That's called blastocyst or blastula. दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना था. And yes, I want to show it. हर पेज में मेरे यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है. कौन से पेज नंबर में आपको ये NCERT ये वाला आंसर मिलेगा? On every page of the slide you will find this. So please keep your NCERT open and follow these pages to find out the answers, where the answers are. ठीक? Now next क्वेश्चन है आपका 3 मार्क का, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स. मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बोर्ड एग्जाम में ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है, बट देयर इज नो मार्क ऑन द ड्राइंग, इट इज ओनली ऑन द लेबलिंग. फॉर एग्जांपल अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ड्राइंग पर कोई मार्क्स नहीं होगा, तीनों मार्क्स लेबलिंग पर होंगे. नॉर्मली एक लेबलिंग पर हाफ मार्क होता है, दैट मीन्स हाफ इंटू 6 विल कम टू 3, दैट मीन्स यू हैव टू मेक मिनिमम 6 लेबलिंग्स, राइट? तो आपको ये बनाना है पेज NCERT 45 में. ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम में
काफी सारे लेबलिंग्स हैं, आपको किसी 6 लेबलिंग के साथ इस डायग्राम को बनाना था, राइट। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे इजी वे में बनाया जा सके, हाउ टू मेक दिस डायग्राम वेरी इजीली एंड ऑल्सो रिमेंबर इट्स लेबलिंग, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप ऊपर में देख सकते हैं आई कार्ड में। प्लीज क्लिक टू दैट एंड देन यू विल नो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट। सो नाउ ले विल गो टू 2012 में इस यूनिट से इफ यू कैन सी 5 मार्क के क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क का एक, 2 मार्क का के क्वेश्चंस एंड 3 मार्क में कुछ आया था एंड एक 5 मार्क का क्वेश्चन में आपका और क्वेश्चन आया था, मतलब 5 मार्क में 29 क्वेश्चन का जो और था वो इस चैप्टर से था, यानी कि इन शॉर्ट 5 + 5 ब्रैकेट हियर मींस और जो है आया था आपका टोटल 10 मार्क के क्वेश्चंस आए थे। सो लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। वेयर इज एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस? राइट इट्स फंक्शन, यस यू नो इट, एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द स्पर्म हेड। आपने पढ़ा है स्पर्म के हेड में एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड में, एंड दिस कॉनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, राइट। तो इस पे ऑन स्पर्म हेड, इस पर था आपका हाफ मार्क्स, राइट। एंड इसका फंक्शन क्या है? यू नो इट कंटेन्स एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये एग के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है एंड स्पर्म को एग के अंदर, इफ यू कंसिडर दिस टू बी एग के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करता है, हैज एंजाइम्स टू डिसॉल्व द फॉलिकल्स ऑफ द ओवम एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस फॉर फर्टिलाइजेशन। या आप साथ में ये लिख सकते थे कि इट हेल्प्स द स्पर्म टू एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। इनमें से कोई भी एक पॉइंट पर आपका हाफ मार्क है एंड हाफ मार्क ऑन स्पर्म हेड पर है। दिस वाज योर 1 मार्क क्वेश्चन, right? Now let us come to question number 11 जो एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। Where do signals for parturition originate from in humans? ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। It develops from fully developed fetus and the placenta. Why it is important to feed the newborn babies on colostrum? You know that because they are rich in antibodies. So let us see CBSE ने क्या डाला था। Where do signals of parturition originate? From the fully developed fetus and the placenta by a phenomena called as fetal ejection reflex। इन दोनों में से कोई एक को लिखना था, आपको फुल मार्क्स मिलता। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स एंटीबॉडी ए, ठीक, विच पैसिवली इम्यूनाइजेस द बेबी। तो आपको एंटीबॉडी पर हाफ मार्क था एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन ये आपके इम्यून सिस्टम का वर्ड है, बट यहां पर आपको लिखना था पैसिव इम्यूनाइजेशन पे आपका हाफ मार्क्स है। दैट कम्स टू 1 मार्क, 1 and 1। यू कैन सी ऑल दिस इन पेज 53 ऑफ योर NCERT। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। दिस इज a 2 mark question। एज यू कैन सी दैट द ह्यूमन टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में पाया जाता है, बिकॉज हियर द टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री lower than the body temperature, which is essential for spermatogenesis। अब देखते हैं CBSE ने मार्किंग स्कीम में क्या डाला था। What is exactly CBSE ने दिया था? To maintain the temperature 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री होगा, it is not 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड lower than the body का internal temperature, that is essential for spermatogenesis। So half and half ये हो गया आपका 1। Actually give reasons के आपके 2 give reason रहे होंगे, A and B, जिसमें से B कोई दूसरे चैप्टर का रहा होगा, राइट, और या मे बी इसी का होगा। लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नो, सो 22 का C। ओके, नाउ लेट अस सी, दिस इज 14। I think the B part must have been from some other chapter. Now let us look at 22 में 3 मार्क के क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ 3 का फंक्शन पूछा था, जिसमें से एक का फंक्शन इस चैप्टर से, बचे हुए 2 किसी और चैप्टर से रहा होगा, यानी कि ये अपने आप में एक 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? ऑफ कोर्स इसका फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट टू एंड फ्रो द बॉडी ऑफ द फीटस एंड मदर एंड फीटस के बीच में ये कनेक्शन करता है, जस्ट लाइक प्लेसेंटा तो खैर मैटरनल एंड चाइल्ड के यूट्राइन टिश्यू के, मदर की यूट्राइन टिश्यू एंड बच्चे के फीटल टिश्यू के इंटरमिंगलिंग से बनता है, एंड फिर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। 3 चीजें यहाँ पर, न्यूट्रिएंट, सेकंड लिखा है रेस्पिरेटरी गैसेस, एंड थर्ड लिखा है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट टू एंड फ्रॉम बिटवीन द मदर एंड द फीटस।
राइट, सो दैट केम एज 1 मार्क क्वेश्चन। ना 3 मार्क में एक ऑप्शन इसका था। नाउ 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओवेरियन इवेंट A to I इन अ ह्यूमन फीमेल। आप देख सकते हैं ABCDEFGHI बना हुआ है, राइट। Identify the figure that illustrates corpus luteum and name the pituitary hormone that influences its formation। आपको पता है ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर यहाँ ओव्यूलेशन है तो ऑब्वियसली G इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड व्हाट इज द हार्मोन, द पिट्यूटरी हार्मोन LH, है ना, के इन्फ्लुएंस में कॉर्पस ल्यूटियम आपका बनता है। स्पेसिफाई द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसका फंक्शन क्या है कॉर्पस ल्यूटियम का? यू नो दैट इट मेक्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, राइट, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द यूट्राइन क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी, विच इज एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द यूट्रस। अभी आपको बताया फंक्शन ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन एंड दैट इज हेल्प यूजफुल इन मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। व्हाई इज इट एसेंशियल? Why? How does it influence the uterus and why it is essential? What is the difference between D and E? Now look at this, A, B, C, D, and then it is causing D and E. I think D and E में main difference होना चाहिए. This is primary follicle, this is secondary follicle, and D and E, A, B, C, D, E, and this is tertiary follicle. चलिए हम लोग भी देख लेते हैं and draw a neat label diagram of Graafian follicle. So now let us come one by one. G is your luteinizing hormone, जैसा मैंने बोला था ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है that causes proliferation of the endometrium, यानी कि यूट्रस के वॉल को thick and vascularized करता है. It is also essential for implantation and to maintain the same during pregnancy. Now D is the tertiary follicle and E is the Graafian follicle. I'm sorry, let us look at the diagram once again. या बोल रहे डी को कह रहा है ये है टर्शरी फॉलिकल एंड ई, यस ई ऑफ कोर्स ग्राफिन फॉलिकल है, तभी ना ग्राफिन फॉलिकल रप्चर किया। सो आई एम सॉरी आई सेड दिस इज टू बी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये है आपका टर्शरी फॉलिकल, ये है ग्राफिन फॉलिकल। एंड आ जाता है आइडेंटिफाई ये आपका हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोक्राइन फंक्शन है, ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करता है और उसको स्टेबल बना के रखता है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई? इट इज टर्शरी follicle and this is Graafian follicle, as you could see this, ठीक है, is a Graafian follicle और एक Graafian follicle का आपको डायग्राम बनाना था। Now look at this diagram, look at if we see this diagram, इसमें this is your oocyte or the ovum, this is, and यहाँ का labeling आपको छूट गया है, this is follicular cells. This is your follicular cells, right? So this is the diagram of Graafian follicle. आपके बुक में NCERT में अलग से Graafian follicle का डायग्राम नहीं है, पर ये 2 बार आ चुका है. So how are you making it? ऐसा आपका ऊपर में देखिए एक आपका आई कार्ड होगा. From this आई कार्ड, I have also made a separate video on how to draw the Graafian follicle, which is a very important diagram for the board exam. आप देखेंगे एक बार और रिपीट हुआ है, जिसका लिंक, वीडियो लिंक ऊपर आई कार्ड में दिया हुआ है. So you can visit that so that you can have a good idea how to draw this and how to label it and what to label it for your board examinations, right? So now we'll come to 2013. 2013 में इस chapter से if you can see a pretty good number, that is 3 mark का direct question and एक 5 mark का और का question, that means total 8 mark का question आया था. Right, so look at the first question first. Explain the steps in the formation of an ovum from an oogonium in humans. Ovum oogonium से कैसे बनता है, यानी कि in short process of oogenesis को आपके 3 marks में आपका पूछा गया है. Now listen, यहाँ पर आपका कहता है NCERT कि आप चाहें तो आप थियोरी में इतना लिखेंगे तो भी आपको 3 marks आ जाएगा, या जो आपके NCERT में, this is page 48 and 49, आपके NCERT में जो डायग्राम है oogenesis का, अगर आप वो भी लेबल डायग्राम बनाएंगे तो चलेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा. तो अगर आप लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? The oogonia, it enters prophase 1 where it is temporarily arrested, then it forms primary oocyte. The primary oocyte, they complete their first meiosis to form secondary oocyte and first polar body. This secondary oocyte completes its meiosis, it forms ovum and to the second polar body. आपके यहाँ 6 points है, half into 6, और आप चाहते तो आप ये डायग्राम भी बना सकते थे. आपको दिख रहा है the oogonia
undergoes mitosis to form primary oocyte जो लिखा हुआ था, this is half mark. This undergoes first meiosis which is completed prior to ovulation, this is half marks. To form secondary oocyte, that's half mark. The second meiotic division takes place here, right? This is half marks, and that forms ovum and a second polar body which is half marks. So you can see 1, 2 and 3. You could have also made a labeled diagram. Is that clear? Draw a diagrammatic. Okay, how to make this diagram as well? You know, I'm going to I have posted a video oogenesis का and spermatogenesis का बोर्ड में जो डायग्राम आता है वो आपको कैसे बनाना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका अगेन आप ऊपर में आई कार्ड में लिंक देख सकते हैं. Now let's come to the next question. Draw a diagrammatic sectional view of human seminiferous tubule and label Sertoli cell, primary spermatocyte, spermatogonia and spermatozoa into it. ठीक, this is a total 5 mark question. That means half into 4 labeling बोला है, that is 2 marks यहाँ है. Explain the hormonal regulation of process of spermatogenesis in humans. Again, you know, now let us come to the answer. ये जो आपके NCERT के पेज 47 का डायग्राम है, this is a very important diagram. How to make this diagram? Very easy, very simple way में आप इस डायग्राम को कैसे बनाकर याद कर सकते हैं, इसका भी मैंने ऊपर में आई कार्ड आपको बनाया है, आई कार्ड लिंक दिया है. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी टेकन टू द डायग्राम, जिससे आप सीख सकते हैं कि इस डायग्राम को कैसे बनाया जाता है. जैसा कि मैंने कहा था, इसमें आपको 4 ही पार्ट को लेबल करना था. सो यू कैन सी दोज 4 spermatozoa, primary spermatocyte, Sertoli and spermatogonia को करना था. Now this is the hormonal control. Now you know it very well that in hormonal control, ये मेरा टास्क बार खत्म नहीं हो रहा है. ओके, नाउ यू नो दैट इन अब नीचे का आपको दिखेगा, ये जो आपका हार्मोनल कंट्रोल है, ये आपके पेज 47 में बहुत क्लियर कट लिखा है. सबसे पहले हाइपोथैलेमस ये बनाता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, जो यहाँ पर दिखा है. इट ठीक, दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ये एक बार मेडिकल में भी आया था कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे. एंटीरियर, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन बनाता है, एक है FSH और एक है LH. So this is the second point. It stimulates the secretion of FSH and LH from anterior pituitary. Now what will happen? This LH will work where? It will work on Leydig cells. You know that. ये जाएगा Leydig cell पे जाएगा and Leydig cell को stimulate करेगा to make the male hormones that is also called as androgens. So Leydig cells में एंड्रोजन बनाता है और एंड्रोजन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट. अब आ जाते हैं एफएसएच किस पे काम करेगा. आप जानते हैं एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल्स पर, राइट. दिस एफएसएच विल वर्क ऑन सर्टोली सेल्स एंड एलएच विल वर्क ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स जो यहाँ पर बना बनेंगे. ठीक है, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा क्या चीज के लिए? टू मेक सम फैक्टर्स, राइट. तो फैक्टर्स पर हाफ मार्क्स है एंड इन फैक्टर्स का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. दिस एंटायर थिंग इज रिटन इन पेज 47. प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, वर्ड बाय वर्ड लिखा है. सो दस यू नो हाउ द ये आपका 3 मार्क का कैसे बना और ये 2 मार्क का, दैट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. नाउ लेट अस कम टू द ईयर 2014. 2014 में इस यूनिट मतलब चैप्टर से यू कैन सी 1-2 मार्क का क्वेश्चन एंड 5 मार्क का क्वेश्चन का जो एक है. दिस 5 मार्क का क्वेश्चन का जो है उसका केवल A इस चैप्टर से पूछा गया है, B पूछा गया फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो ओवरऑल मिलाकर 2 मार्क एंड प्लस इससे जो 1-2 नंबर हुए, ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से 2014 में आया. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? ये आपने अभी भी पढ़ा है. बिकॉज द टेम्परेचर देयर इज 2 and 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड नेम द पाउच. आप जानते हैं उस पाउच का नाम है स्क्रोटम, राइट. सो नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स. You can see because it has 2 to 2.5 degree temperature less, which is essential for spermatogenesis, and this is scrotum or the scrotal sac, right. Now next आ जाते हैं question, where does fertilization occur in humans? ठीक है, and ये जो B part है इसको मत देखिएगा, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का. only the A part is from this chapter. Where does fertilization occur in humans? You know that fertilization occurs in ampulla isthmic junction.
राइट। पेज 51 ऑफ योर एनसीईआरटी को आप लोग देखिएगा, उसमें क्लियर कट लिखा है ये जो एम्प्यूला एंड स्टमक्स के बीच का जो जंक्शन है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहां पर होता है। ठीक, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। नाउ लिसन, दिस इज एम्प्यूला स्टमक जंक्शन दैट इज इन द फैलोपियन ट्यूब। इसमें होता क्या है, आपके ठीक एनसीईआरटी के पेज 51 में ये सारा स्टेप वाइज लिखा है। सबसे पहले स्पर्म आता है इन कॉन्टैक्ट, ये आपका एग है और आपको पता है एग के चारों तरफ पाया जाता है एक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। तो सबसे पहले स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद वो उसके इसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस लाता है। ठीक, ये चेंजेस लाने की वजह से क्या होता है, केवल एक स्पर्म का हेड अंदर घुस पाता है, बचे हुए स्पर्म घुस नहीं पाते। दिस इंश्योर्स दैट देयर इज नो पॉलीस्पर्मी। राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद एक्रोसोम अपना सिक्रीशन बनाता है, ठीक, जिसकी वजह से स्पर्म का हेड साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ही स्पर्म का हेड इसको टच करता है, एग अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है एंड इट फॉर्म्स द, दिस इज नॉट एक्चुअली एग, एक्चुअली दिस इज सेकेंडरी oocyte, राइट, दिस इज एक्चुअली नॉट एग, दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो जैसे ही स्पर्म का हेड टच करता है, ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करता है, सेकेंड मियोसिस, एंड इट फॉर्म्स द एग और द ओवा एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक, बाय दैट टाइम स्पर्म का हेड अंदर चला जाता है, ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही एग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मियोसिस कंप्लीट करके जैसे तब तक स्पर्म अपना न्यूक्लियस दे देता है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म गोज इनसाइड एंड फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इज फॉर्म एंड दस द फर्टिलाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? तो सारा स्टेप्स आपका यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले द स्पर्म, ये आपका सेकेंडरी oocyte है, दिस इज एंड दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा, राइट। तो सबसे पहले स्पर्म का हेड टचेस जोना पेल्यूसिडा, then it induces certain changes in this membrane. As a result, other sperms, they cannot penetrate it. Then its acrosome makes some secretion that helps the sperm to enter into the cytoplasm. इसकी वजह से sperm, ये जो आपका है, इसके साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म तक स्पर्म एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म जैसे ही इसको टच करता है, ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करता है एंड इट फॉर्म्स द हैप्लॉइड एग and the second polar body. ठीक, by that time the sperm का nucleus is released and this egg that gets converted into zygote. Is that clear? I'm sure आपको ये steps याद हो गया होगा. Now let us move to 2015. 2015 में आप देखेंगे केवल एक 5 मार्क का और क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है. Now what is that? Describe the role of pituitary and ovarian hormone in the during the menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिट्यूटरी का हार्मोन एंड ओवरी के हार्मोन का क्या रोल है? तो आपको पता है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लिए। पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स है, एक है एफएसएच एंड एलएच जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिनका कोई रोल है, एंड ओवेरी 2 हार्मोन बनाता है, वन इज एस्ट्रोजन and the other is progesterone, जिसका which actually participate in menstrual cycle. So basically it is asking the role of FSH and LH from the pituitary and the role of estrogen and progesterone, right? So let us now see what was there in the CBSE marking scheme. एकदम clear cut लिखा है, pituitary हार्मोन में लिखा है when the level of FSH is high. आपको पता है FSH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ओवरी में द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ये बनाएगा आपका टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल आपका बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल, राइट। सो इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर ग्रोथ। वेरी गुड। आपको पता है पिट्यूटरी 2 हार्मोन बनाता है, एक बनाता है FSH और दूसरा बनाता है LH। तो पहले FSH का रोल बता रहा है। FSH के इन्फ्लुएंस में देयर इज अ फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक, एंड दीज डेवलपिंग फॉलिकल्स दे मेक द फर्स्ट ओवेरियन हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, ये ओवरी का पहला हार्मोन जिस आपका बनता है एस्ट्रोजन। ये हो गया FSH का रोल। अब आ जाते हैं LH का रोल क्या है। आपको पता है LH के इन्फ्लुएंस में ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है एंड ओव्यूलेशन होता है एंड एग एक्चुअली मूव्स टू द फैलोपियन ट्यूब। ये अगर हम फैलोपियन ट्यूब बनाए, ये ओव्यूलेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। ठीक, तो LH का सर्ज होता है ड्यूरिंग द मिडल, आपको पता है 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन एंड आल्सो LH जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स हैं उसको कन्वर्ट करता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। यू नो दैट, इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये 2 रोल है। एस्ट्रोजन तो इन डेवलपिंग फॉलिकल्स द्वारा बनाया जाता है। हो गया। नाउ लेट अस कम टू द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन में एक तो है, आपको मैंने बताया था, एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? नाउ इफ यू कंसीडर दिस टू बी यूट्रस, एस्ट्रोजन
यूट्रस की वॉल का थोड़ा बहुत थिकनिंग करता है, थोड़ा थिकनिंग करता है. सो इट हेल्प्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका फर्दर थिकनिंग करता है एंड इसको स्टेबल बना के रखता है फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक, सो इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन. लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही होता है, बट आपके बुक पे लिखा है दैट विल रिजल्ट इनटू मेंस्ट्रुअल फ्लो, राइट. सो दिस इज द रोल. सो प्लीज लर्न इट. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्या बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस कम टू 2016. इन 2016 यू कैन सी 5 मार्क का क्वेश्चन अगेन इसी चैप्टर से आया था. क्या क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल, स्टेट द लेवल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग दिस फेज. ये देखिए लास्ट ईयर भी आया था रोल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, बट ओवरऑल आया था. अभी आपको क्या बोल रहा है, ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, दैट मींस ओवरी का हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड पिट्यूटरी का हो गया एफएसएच एंड एलएच. ये केवल मेंस्ट्रुअल फेज, आपको पता है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में है. मेंस्ट्रुअल फेज, देन द सेकंड इज योर प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड इज योर सिक्रीटरी फेज, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं. उसमें केवल फर्स्ट फेज में ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन का रोल पूछ रहा है. फिर वो पूछता है कि जो सेकंड फेज है, जो नाम है, मैंने कहा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में बटा हुआ है. पहला है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, राइट, जो 3 to 5 डेज के लिए होता है मेंस्ट्रुअल फेज. सेकंड होता है आपका फॉलिकुलर फेज, जो होता है अप फ्रॉम 5th डे टू 14th डे होता है. एंड थर्ड होता है आपका ल्यूटियल फेज, जो मेनली 14 डे से लेकर 15 डे से 28 डे तक होता है. ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर 3 to 5 days. Then this is mainly from 16 to 14 days and this is 15 to 28 days के लिए होता है. तो पहला आपको पूछा मेंस्ट्रुअल जो फेज है उसमें ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन का जो लेवल होता है, क्या लेवल होता है. ठीक है, स्टेट द लेवल, देयर लेवल ड्यूरिंग, मतलब इट इज हाई, इट इज लो, वो बताइए. फिर सेकंड क्वेश्चन है ये फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी क्यों बोलते हैं. ठीक, उसके बाद है ये एक्सप्लेन होगा, यहाँ प्लेन लिखा गया है. एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द ग्राफिन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड देयर आफ्टर. ठीक है, फॉलिकुलर फेज के एंड में आपका क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके ओव्यूलेट करता है. उन इवेंट्स को समझाइए एंड उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल को आपको ड्रॉ करके एंट्रम एंड सेकेंडरी oocyte बनाना था. यू कैन सी दिस डायग्राम हैज नाउ कम फॉर द सेकेंड टाइम. सो नाउ लेट अस मूव. फर्स्ट है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ pituitary hormone and ovarian hormone, what is the level in during the menstrual phase. So menstrual phase is that phase कब होता है, जब ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं होता. एज अ रिजल्ट जब क्या होता है, द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन करता है एंड ब्लड वेसल्स एंड ऑल दोस दे कम आउट फ्रॉम द वजाइना एंड दिस लास्ट फॉर 3 to 5 days. दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज. आई थिंक एक क्वेश्चन ये भी है आपका, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज. पहले तो आपको पूरा मेंस्ट्रुअल फेज एक्सप्लेन करना था एंड देन ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन का रोल बताना था. तो मेंस्ट्रुअल फेज का यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन है, राइट. इसमें क्या होता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, इट इज लेस, इट फॉल्स डाउन. नाउ अब आप इसको ग्राफिकली भी, जो आपके पेज 50 में जो आपका एक डायग्राम बना हुआ है, आप उस डायग्राम को भी केवल बना सकते थे. द मेंस्ट्रुअल फेज, केवल उसका डायग्राम भी आप लिख सकते थे, राइट. ग्राफिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे. आप इसको लाइन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका था प्राइमरी फॉलिकल, ए हो गया. Now I have forgotten the B part. Why is follicular phase also called as proliferative phase? ठीक, it is the primary during this phase the follicle का growth होता है. Primary follicle gradually डेवलप कर जाता है थ्रू सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल इनटू ग्राफिन फॉलिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH and FSH एंड एंडोमेट्रियम का लाइनिंग थोड़ा सा थिकन होता है. इसीलिए इसको हम लोग फॉलिकुलर फेज को, आपका फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरी में proliferation होता है of follicles. The primary follicle gets converted into graphene follicle and जो यूट्रस का वॉल है वो थिकन होता है, यानी कि वो भी proliferate करता है, यानी कि proliferation ovary and uterus दोनों में होता है. So we call it as proliferative phase, right. अब आता है what is a graphene follicle, में क्या चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. ये आपका सी था. तो ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन के वक्त रप्चर करता है और ये सेकेंडरी oocyte को निकालता है एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, राइट. तो दीज आर द चेंजेस एंड लेस आपको डायग्राम लेबल करना था. अभी मैंने बताया दिस इज योर एंट्रम, दिस इज द सेकेंडरी oocyte. आपको ये क्वेश्चन 2 बार आ सकता है, आ चुका है आपके बुक में, एनसीईआरटी में कोई इसका डायग्राम बना हुआ नहीं है.
थोड़ा सा और डिटेल्ड आपको आना चाहिए. सो एज आई टोल्ड यू, आप ऊपर में आई कार्ड देखे, जस्ट क्लिक इट देयर. आई हैव एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू ड्रॉ दिस. प्लीज सी दैट एंड लर्न दिस डायग्राम बिकॉज इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम. नाउ लेट अस कम टू द ईयर 2017. अगेन 2017 में 5 मार्क का और क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आया था. राइट, सो फर्स्ट लेट अस कम टू द क्वेश्चन. The question here is, explain the following phases of menstrual cycle of human female. राइट, मैं वहां पर क्वेश्चन लिखना भूल गई तो मैं यही बता दूं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो 3 फेजेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना था. एंड बी में था अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन हेल्प इमेंसली इन फैमिली प्लानिंग. डू यू अग्री? प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर. एक्चुअली द बी पार्ट इज फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. फ्रॉम दिस चैप्टर this is you have to explain the phases, menstrual phase, follicular phase and luteal phase. ये आपको तीनों को explain करना था. पहले आ जाते हैं menstrual phase. आपको पता है ये first 3 to 5 days के लिए होता है, जहां पर endometrium का breakdown होता है. और ये कब होता है? जब ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं होता. The next phase is follicular phase. मैंने आपको बताया था ये 5 to 14 days में होता है, जहां प्राइमरी follicle क्या बनाता है? ग्राफिन follicle बनाता है. एंडोमेट्रियम आपका और थिकन होता है, रीजनरेट करता है, एंड एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज द ग्राफिन फॉलिकल इट रप्चर्स टू रिलीज ओवा. ल्यूटियल फेज कब से कब होता है? मैंने बताया था 15 to 20 डेज 8 डे में होता है, जब ग्राफिन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जो बनाता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द endometrium. All the 3 phases are under the control of pituitary and ovarian hormone. ठीक, ये हो गया आपका. उसके बाद पूछा था आपको क्या लगता है, इज इट हेल्पफुल? तो यस, आपको पता है कि जो एग है वो मेनली 24 आवर्स के लिए ही वायबल होता है, उसके बाद वो डीजनरेट कर जाता है. हम लोग आइडियली बोलते हैं कि ओव्यूलेशन होता है 14 डे पर हम मानकर चलते हैं कि 10 से लेकर 17 डेज के बीच में कभी ना कभी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है. राइट, तो अगर आपको पता होगा 10 to 17 डेज के में ही आपकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है, उससे पहले और बाद का पीरियड आपका सेफ पीरियड कहलाता है. व्हाट इफ दिस इज, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर वंस अगेन. Right, so now let us come to the next question, that is 2018 next year. अब देखते हैं 2018 में आपका क्या आया. अगेन देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीसरा लगातार साल है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आ रहा है. एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स. हाउ कैन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया, सिर्फ थोड़ा घुमाकर. राइट, सेम क्वेश्चन आ गया आपका थोड़ा सा घुमाकर. 5 मार्क का, सॉरी, एक तो ये क्वेश्चन आया, इसके अलावा आपका क्वेश्चन आया ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. तो आपका 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस आए. मेडिकली इट इज एडवाइज दैट यंग मदर शुड ब्रेस्ट फीड. तो यानी कि 3 + 3 6, 6 + 5 11 मार्क का क्वेश्चन इससे आया. तो सबसे पहले आ जाते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म. राइट, एंड लेबल any 3 parts and write their function. आपके एनसीईआरटी में 1 2 3 4 5 पार्ट्स लेबल्ड है. उसके अलावा लेबल्ड है दैट दिस इज हेड, दिस इज नेक, दिस इज मिडिल पीस. ये 3 आपके लेबलिंग और है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम. अगेन इस डायग्राम को बड़ा आसानी से चुटकियों से कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा. प्लीज सी दैट वीडियो एंड विद इन मिनट्स यू विल बी एबल टू लर्न इट. ऑल्सो लर्न द labelings, right, how to remember it for long. In the meantime, इन पांचों में से हमको किसी 3 को लिखना था. सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it covers the sperm. नेक्स्ट है ये एक्रोसोम, आपको पता है it helps in fertilization of the ovum. नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, you know that माइटोकॉन्ड्रिया is the energy source. नेक्स्ट आपका लिखा है मिडिल पीस, इसको भी लेबल कर दिया है. मिडिल पीस में कह रहा है it possesses mitochondria which gives the energy for swimming. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका टेल, it helps in movement. और एक लेबलिंग है आपका न्यूक्लियस, it contains the chromosome material. Right, so now let's come to this. Medically it is advised to all young mothers that breastfeeding is the best for the newborn babies. Do you agree? Give support in your answer. Right, this is another 3 mark question. पिछला वाला भी 3 था, ये भी 3 है. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बार रिमाइंड करना भूल गई. 3 मार्क का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मींस इट हैज टू बी 3 लेबलिंग. आपका एक्चुअली 6 लेबलिंग होना चाहिए था, पर 3 लेबलिंग इसलिए है क्योंकि हाफ मार्क ऑन लेबलिंग, हाफ मार्क ऑन द फंक्शन. राइट, नाउ डू यू अग्री? Yes, I agree and give reasons why. Because mother's milk आपने अभी भी पढ़ा, it contains antibody A जो न्यूबॉर्न बेबी को क्या देता है? आपका
ये देता है इम्यूनिटी। तो 1 मार्क है यस। पहला, मदर का मिल्क बच्चे को नरिशमेंट देता है यानी कि कैल्शियम, फैट, लैक्टोज। सेकेंड, इट प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, दैट मीन्स ये आपका एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए देता है जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देता है। राइट, सो दिस इज योर 3 मार्क क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन था, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। अभी अभी आपने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 days, उसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन करता है एंड it is shed to the outside. Next is a proliferative phase जिसमें primary follicle graphene follicle में बदलता है। 14 day में graphene follicle FSH influence में पहला हुआ, then LH के influence से burst करता है, ovulation होता है and the remaining cells they form corpus luteum. Next है आपका luteal phase, इसमें corpus luteum under the influence of LH बनाता है progesterone which is essential for maintaining the lining endometrium lining of the uterus। वही same 3 functions है, देखिए वही है। First is menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase. This is 1 to 5 days. This is 6 to 14 days, and this is 15 to 28 days. यहाँ menstrual flow होता है due to breakdown, ये तब होता है जब fertilization नहीं होता है। यहाँ primary follicle graphene follicle बनाता है, ठीक, and आपका endometrium regenerate करता है, and ये ovarian and pituitary hormones की मदद से होता है। Then is the LH के surge में graphene follicle rupture करता है, secondary oocyte release करता है। इसको एक एक्स्ट्रा फेज डाल दिया है पर एक्चुअली ये फॉलिकुलर फेज में ही आता है, ठीक है। इस ईयर में मार्किंग स्कीम में भले ही डाल दिया है, अदरवाइज दिस ओव्यूलेटरी फेज कम्स इन फॉलिकुलर फेज ओनली, ठीक। देन आता है ल्यूटियल फेज जिसमें ग्राफिन फॉलिकल बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग। यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स एंड द सेम आंसर इज रिटन एवरी ईयर इन द मार्किंग स्कीम। नाउ नेक्स्ट आता है, हाँ, इज इट, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंडरस्टैंडिंग है तो क्या आप इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज कर सकते हैं? ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर ही बता दें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर मीन समथिंग विच हेल्प्स टू रेगुलेट प्रेगनेंसी, यानी कि जब चाहेंगे तभी बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हाँ, अभी तो मैंने कहा था केवल 10 to 17 डेज के बीच में ही ओव्यूलेशन होने के चांसेस है, यानी कि 10 to 17 डेज के अंदर ही एग का फेलोपियन ट्यूब में पाए जाने का चांसेस है, और जब एग होगा तभी फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेफ पीरियड है और किस दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा है। राइट, नाउ वील कम टू लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2019। अगेन एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया था आपका फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हेन एंड हाउ डू द फॉलोइंग गेट टू फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। राइट, ये कब बनता है और इनका क्या फंक्शन है? राइट, सो नाउ लेट अस फर्स्ट कम टू कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम कौन से फेज में बनता है? 3rd फेज, दैट इज ल्यूटियल फेज। कब बनता है? ठीक ओव्यूलेशन के बाद। ठीक, कब बनता है? जब ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक, वो आपका रप्चर कर जाता है, जो बचे हुए सेल्स ग्राफिन फॉलिकल के होते हैं ये LH के इन्फ्लुएंस में आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। एंड आपको पता है इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? इतनी बार हमने कर लिया, ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है विच हेल्प्स टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब बनता है? वंस द चाइल्ड हैज बीन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। राइट, अगर इसको आई एम मेकिंग अ वेरी बैड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दिस इज माई यूट्रस, दिस गोज हियर, दिस गोज हियर लाइक दिस। अब आ जाते हैं प्लेसेंटा कब बनता है? जब आपका एम्ब्रियो का यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है। राइट, अब ये प्लेसेंटा बनता कैसे? आपको पता है पार्टली मेटर्नल एंड पार्टली फीटल। तो आपको पता है ये जो मदर का जो यूट्राइन टिश्यू है ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। राइट, एंड ये जो है फीटस ये भी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा एंड ये आपस में इंटरडिजिटेड। तो दिस इज मेटर्नल यूटराइन टिश्यू एंड दिस इज फीटल टिश्यू। जैसे यहाँ पर ये बच्चा है, बच्चे ने ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस बनाया तो ये यूट्रस का वॉल भी इसके साथ इंटरडिजिटेट कर जाएगा एंड दिस इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। राइट, द कोरियोनिक विलाई और या द ब्लास्टोसिस्ट it interdigitates to form the placenta. Placenta का काम क्या है? It supplies oxygen, nutrient and it removes carbon dioxide and waste. Right? इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। तो प्लेसेंटा का 2 फंक्शन है। पहला it supplies oxygen and nutrients, second it removes CO2 and excretory material, third it produces several hormones. राइट, सो ये आपको लिखना था। नाउ लेट अस कम टू दिस ईयर 2020 में आपका कितना मार्क का क्वेश्चन आया? आपका इस चैप्टर से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया एंड एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया में और आया
एंड एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी आया, सो वी कैन राइट +5 ओवर हियर विच हैज कम एज अ और, ठीक है, सो 5 plus a 3 mark का और +1, so literally it is 5 + 4 that is 9 mark का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आया, राइट। कब ईयर पहला आया आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, देयर वाज वन एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको पता है इस साल से 1 मार्क के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जो स्पर्म का हेड है ये सर्टोली सेल में एम्बीड करता है, नरिशमेंट लेकर रिलीज होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। जस्ट लुक एट पेज 47, वहां पर क्लियर कट लिखा है, इट इज सर्टोली सेल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट कम हियर, स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आप देखिए, बोल रहा है नेम द हार्मोन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ A to B, B to C, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल होने में कौन मदद करता है, यू नो इट इज FSH। नेम द हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय A and B, ये डेवलपिंग फॉलिकल कौन सा हार्मोन बनाते हैं, यू नो दैट इट इज एस्ट्रोजन, दैट्स वेरी इजी। थर्ड, स्टेट द रोल ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय D, आपको पता है D कॉर्पस ल्यूटियम और ये कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन, और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग of the uterus, right? So FSH, estrogen, which is essential for maintaining the endometrial lining. Now let us come to the 5 mark question that came from this chapter. Where does fertilization occur in oviduct? Describe the process. आप जानते हैं ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, it's a complete repeat question. In fact अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन इस साल के रिपीट है, इसीलिए मैं कहती हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करिए, रिपीट हो जाते हैं। सो लेट अस सी, यू नो वेयर डज इट अकर, यू नो इट अकर्स इन एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन। आप डिस्क्राइब द प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस जो पहले था। सबसे पहले स्पर्म आएगा इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा मेम्ब्रेन में ताकि एक ही स्पर्म घुस सके। उसके बाद एक्रोसोम की मदद से साइटोप्लाज्म में जाएगा थ्रू जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद आपका जो सेकेंडरी oocyte है फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करेगा, ठीक, एंड ये कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो अब होता है ये अनइक्वल होता है, जिसमें एक सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड एग बनता है। ये स्पर्म अब एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। इट्स अ कंप्लीट रेपिटेशन, राइट। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड discussing the board question papers of this chapter right from the year 2011 to 2020। 10 साल की पेपर हमने डिस्कस किया, एंड इससे जो डिस्कस किया, प्लीज लेट मी टेल यू, आपने देखा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, राइट, आपके जो तीनों फेजेस है। इसके अलावा आप देख रहे हो oogenesis से क्वेश्चंस आपके काफी आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चंस आपके काफी आ रहे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी है। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वहां पे मेरा जो एंड स्क्रीन आएगा सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के लिंक मैंने शेयर किए, या आप मेरे चैनल में भी जा सकते हैं। इट्स सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, हाउ टू मेक देम क्विकली एंड रिमेंबर देयर लेबलिंग, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, यू कैन सी दैट, ठीक। इसका आपका ऊपर में यू कैन ऑल्सो सी द आई कार्ड। इसके अलावा इस चैप्टर का, सो इन शॉर्ट बोर्ड में क्वेश्चंस दे कम, if you repeat, you study the past paper, at times all the questions are repeated as it happened this year, so please study that। इसके अलावा 10 years का मेडिकल का फ्रॉम 2010 से लेकर 2019 तक के मेडिकल के इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो बना दी है, जिसका अगेन लिंक ऊपर आई कार्ड में आपको दिख रहा है, एंड जिसका लिंक मैंने लास्ट में एंड स्क्रीन में भी शेयर किया है, एंड आप मेरे नीचे चैनल में जाकर भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर का पूरा डिटेल थियोरी का वीडियोस भी मैंने बनाया है, एंड द लिंक टू दोज यू कैन गेट इट फ्रॉम माय चैनल बिलो और द एंड स्क्रीन दैट आई हैव गिवन एट द एंड। सो आई होप बाय दिस टाइम दिस चैप्टर along with the 10 years question paper both medical and board is thorough to you, and you are well prepared for this chapter।